So, good evening, everyone, and today is lecture number 13 of the 12th chapter of 12th standard, that is electromagnetic induction. So, in the previous lectures, that is from lecture number 1 to 12, we have completed the chapter. We have done maximum, I think, numericals. Only a few numericals are left, right? If I'm not mistaken, a very few numericals are left, which I thought we will complete in the next session. Yeah, the textual question. So if one of you all, Manav or Mehak or Nusrat or somebody, just send me Asif. Yeah, Asif also communicates. So somebody, if you can just send me what is left, just send me the question numbers of what is left. I have marked Vaise, so I counted 4 questions. So in case you can send me, well and good, we'll finish it off. Okay. So today what I'm going to do is I'm going to give you a little bit of synopsis, and we have to do a few questions, some MCQ questions, because we are almost winding up with the chapter. And in the next chapter, that is lecture number 14, we will be finishing off this chapter. Okay, next lecture. So this is the second last lecture of the chapter of EMI. So because in between also I have done some MCQs. अगर आपको याद है तो मैंने बीच में भी आपसे कुछ MCQs करवाए थे. So now I have to do alternating current to do a little higher level. So what I thought is, first I'll give you a few. Let's write a formula list, if you don't mind. Let's write a formula list today, and then let's start off with some questions so that you know that ये chapter में आपको ये formula पढ़ना है. So let's start off with the formula writing. So first and foremost, so I've just put a printed version here, just in case you want, the diagram and things like that. But in my version, this is nothing but your flux. So you can write what I am writing, because बाकी तो आपको PowerPoint वैसे भी मिलेगा. So flux is equal to, okay, Takshita has given me a list. 1 minute, Takshita, let me just write it down. Okay, thank you, dear. I think I got, yeah, so I was right. 4 to 5 questions. Yeah. Okay, so flux is equal to B into A. And let's write it as BA cos theta. And in fact, write number of turns also. This would be the right way to write it, because number of turns भी matter करता है कि नहीं? Flux के units, अगर आपको याद है, एक था वेबर, दूसरा था टेस्ला मीटर स्क्वायर, तीसरा था न्यूटन मीटर पर एम्पियर, नेक्स्ट था जूल पर एम्पियर, नेक्स्ट था जूल सेकेंड पर कूलम, और नेक्स्ट था वोल्ट सेकेंड, राइट? एंड इसका डायमेंशन था m1 l2 t-2 i-1. तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला, उसके यूनिट्स और उसके डायमेंशंस थे, राइट? So write the first point as flux. Don't write anything on the left hand side, because this is already going to be printed. तो ये लिखने की जरूरत, जो मैं right पे लिख रही हूँ वो आप लिखें. Can you finish that off? Magnetic flux करके आप पहला, the first point is magnetic flux. Please tell me, those who have completed. Done? Okay. The next question. So yeah, formula list है सत्यम. ये पहला वाला point जो मैंने लिखा है आप वही लिखे, ठीक है? So मैं just right hand side आपको, left hand side आपको बताती हूँ कि क्या क्या है.
Same. Oh, it's coming to all. Oh, sorry, Ram. Thank you for that. I have not adjusted. Okay, now I've adjusted. Yeah, thank you, Ram. So now, if you look at these diagrams, ये मैंने क्यों draw किया पता है? क्योंकि ये आपको CET में बहुत काम आएगा. I hope everyone ये 6 diagram देख रहे हैं. Everyone is looking at all the 6 diagrams, so I don't want to go and confuse you too much. But this is exactly what you have to remember for JEE main and NEET. अभी पढ़ाने के लिए I can just stick to the rod, but ये जो 6 डायग्राम है 6 के 6 if you remember even for JEE advanced it will be very helpful. So कैसे कैसे questions आते हैं, you know, कभी कभी अगर आपको याद है, in this case the first diagram, अगर आपको first diagram दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड राइट साइड जा रहा है. सो देयर आर 6 डायग्राम्स इन दिस पेज. आई होप एवरीवन कैन सी द 6 डायग्राम्स. तो पहले डायग्राम में रॉड को हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यस, ऐसे डायग्राम्स आपने MEEC में भी देखा होगा. सो आप समझ सकते हैं कि कैसे आने वाला एग्जाम का पेपर. यू नो, थोड़ा बहुत अभी आपको आइडिया आएगा. द मोमेंट आई फिनिश विथ AC सर्किट्स ना, तुम समझ जाना कि यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर CBSE का 12th स्टैंडर्ड. आपने CBSE NCERT बुक अगर देखा है तो उनका जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो उनका 12th स्टैंडर्ड है, याद है. और फिर उनका जो 11th स्टैंडर्ड है वो आपका न्यूटन्स लॉ, यू नो, थर्मोडायनामिक्स, वो सब उनका 11th स्टैंडर्ड है. सो व्हाट हैपेंस इज कि 12th में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, सो इफ यू सी अ रॉड मूविंग, आपको सोचना है, अच्छा, इफ अ रॉड इज मूविंग द फॉर्मूला इज E is equal to BLV. नो, दैट्स आसिफ, वो टोटली डिफरेंट है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. या एक मिनट, आई जस्ट कम टू दैट. ओके, सो नाउ अगर रॉड को बेंड किया तो देखो BLV है बट L2R हो गया. तुमको समझ रहा है? E is equal to BLV में, E is equal to BLV में B और V एज इट इज रखना है. ओके, L को क्या करना है? 2R. क्यों 2R करना है? क्योंकि जो रॉड ऐसा था उस रॉड को तुमने बेंड करवाया है कि नहीं, और जब तुम उसको बेंड करवाते हो तो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा? R और R. सो जो L था अब 2R हो गया. Is this understood everybody? That is the reason that यहाँ पर second diagram में आपको दिखेगा BV into 2R, which will be the EMF. Everyone clear? Okay. Anyone who can tell me why is plus written here and why is minus written here? Anybody? देखो इधर भी आप देखेंगे plus है और नीचे minus है. Anybody who can think on what basis is that plus minus written? Anyone? Anyone who can think? देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है. Anybody can think about it. Anyone who can think that why it must be written like that? Which rule? कुछ रूल के बारे में आप सोच सकते हैं. Very good. Right hand rule. So, you know, what happens, my dear children, you have to always use the right hand rule. You have to always use the right hand rule and check. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So I'm going to teach you the rod and now you have to think, okay? So everyone's attention on the screen. So you know your right hand ka thumb is velocity, pointer is the magnetic field and the middle finger is nothing but the EMF, okay? Wherever this pointer, ये जो middle finger है ना, जो वो जहां पर भी देखेगा वो positive है. Agreed? This is the simplest way to do it. कि जहां पर भी आपका middle finger देखेगा, that point is supposed to be treated as positive. Are you with me, guys? Are you understanding what I'm saying? So let's look at the first, okay? First case में rod ऐसा है, तो आपको imagine करना है ये भाई आपका rod है.
अगर ये आपका रॉड है तो आपका वेलोसिटी कैसे जा रहा है, राइट जा रहा है ना, तो आपको कैसे पकड़ना है, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे आप. सो द पॉइंटर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. मेरा थंब जो है वो राइट जा रहा है. सो आई होप यू कैन सी माई हैंड एंड द मिडिल फिंगर इज लुकिंग अप. The middle finger is looking up. I hope everyone is trying this. The pointer is towards you, मतलब magnetic field आपकी तरफ है, means it's inside, right? It's cross. Now ये middle finger ऊपर जा रहा है. अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका ये मतलब है B positive है. Got it? Got it everyone? So B positive है. इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है. सबको क्लियर हो गया? Similarly, you have to look at everything. जहां प्लस माइनस आ रहा है, आप अपना एंगल्स लगा के देख सकते हैं. Okay, in this case, in the same way, you can think about, you have to think about a semicircle. Velocity ऊपर जा रहा है, magnetic field is going inside. So where should I look? देखो ऐसे आएगा मेरा हाथ. I hope you can see my finger. So ऐसा दिखेगा. अभी semicircle के केस में velocity ऊपर है. अगर velocity ऊपर है, आप देखेंगे मेरा middle finger किस तरफ जा रहा है, एक ही तरफ देखेगा. आप अपना right hand पकड़ के देखें. So when you catch your right hand, you will see that it is looking to the left. अगर वो left देख रहा है, left में तो A है, इसलिए A positive है. Got it? So I hope that you have understood this part, because this is something which is very important. Okay. So इस तरीके से we have all our rods and everything having plus and minus sign. So you don't have to bother about the plus and minus sign of others. But जब angle बनाएगा, देखो हर एक केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पर भी स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है कि नहीं. बट यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा साइड में जा रहा है, ऐसे एंगल बना के रख. नुसरत, देर इज नो एक साइड प्लस है तो दूसरा साइड माइनस है. देर इज नो एग्जाम्पल फॉर दैट. अगर ए पॉजिटिव है बेटा, इसका मतलब बी नेगेटिव है. उसके लिए क्या एग्जाम्पल बताएंगे? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर एक साइड पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना वो. समझा? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना नुसरत, एक ही रूल है ना, राइट हैंड रूल. तो जहां ईएमएफ देख रहा है वो प्लस है, तो दूसरा साइड माइनस है ना. वी आर हैविंग नेगेटिव ना बेटा. ये करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होगा ना. अगर एक टर्मिनल पॉजिटिव है, इट इज अंडरस्टूड दैट द अदर टर्मिनल इज नेगेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग नुसरत? व्हाई इज दैट कंफ्यूजन कमिंग? जब हम बोलते हैं एक साइड नॉर्थ है, अगर मैंने बोला कॉइल का एक साइड नॉर्थ है, तो इट इज अंडरस्टूड ना कि द अदर साइड इज साउथ. उसी तरीके से रॉड का ऊपर अगर पॉजिटिव है, तो इट इज अंडरस्टूड द अदर इज नेगेटिव, बिकॉज दे को एग्जिस्ट ना. प्लस और माइनस को एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ को एग्जिस्ट करते हैं, है कि नहीं. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक है तो दूसरा किधर है. मतलब उसके लिए क्या रूल है? द सेम रूल ना, सेम ही रूल होगा. मैंने इसलिए आपको वो डायरेक्शन का मतलब इट्स अ ट्रिक दैट आई टोल्ड यू एक्चुअली, है कि नहीं. आई जस्ट टोल्ड यू अ ट्रिक. आई सेड अगर आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंटर जिसको देख रहा है वो पॉजिटिव है, तो दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो दिस इज द ट्रिक ऑफ द गेम. इट्स नॉट रिटन इन एनी बुक. यू कैन, this is all engineering stuff, because we use this so much in engineering, so it's very easy for us to explain to you that way. So if you look at yes Atharva, yes. So now if you look at the third part, you can see that velocity थोड़ा slanted जा रहा है कि नहीं. तो फॉर्मूला देखो चेंज हो गया, BLV sin थीटा हो गया. यहाँ पर BLV था, यहाँ पर BV into 2R था, ये BLV sin थीटा था. आपको कुछ नहीं लिखना है. आई होप यू आर नॉट राइटिंग, बिकॉज दिस विल कम टू यू. आप फिर आराम से बैठ के लिख सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. और जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूंगी, आई विल ट्राई टू यूज इट ऑल्सो. नाउ दिस इज वेरी हायर लेवल. इन नीट यहाँ तक ही याद करना है, 1 और 2, मैक्सिमम 4. ये तो आपको पता ही है, रॉड रोटेट हुआ तो क्या होगा, राइट. सो 1, 2 और 4 अगर आप याद रखते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी थोड़ा IIT एडवांस वाला है. नो नो नुसरत, मैग्नेट में सर ने आपको समझाया रहेगा. यू विल नेवर टेक इट एज, अगर ये मैग्नेट है आपका, है कि नहीं, तो आप इसको बेंड करते हैं ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ 2R होता है
इट इज ऑलवेज टेकन बिटवीन द पोल्स, ये डिस्टेंस लिया जाता है. आई होप दैट वाज क्लियर. 2r लेते हैं हम लोग. आई एम श्योर यू हैव डन दिस इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो. हम हमेशा टर्मिनल्स के एंड वाले इसमें लेते हैं. वी डोंट टेक पाई आर, वी टेक 2r. इट्स ऑलवेज एंड्स के बीच का डिस्टेंस. ठीक है. So these are some of the diagrams which is fine if you don't do it, and I thought that will be fun. So there are lot of these examples which I have given, which I will use, but ये सब diagram आपको याद रखना है. मतलब मैंने ये क्यों डाला है slide में, these are the hint कि ऐसा rod दिखा तो समझ जाने का है कि नहीं, ऐसा सर्कल दिखा तो समझ जाने का. मतलब ये इस डायग्राम को कैसे देखना है, ये एक है 7 वाला, एक है ये 8 वाला है, और ये 9 वाला है. समझ रहे हैं? यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला उसका इक्विवेलेंट है, नीचे वाला ऊपर वाले का इक्विवेलेंट है. अगर हमने रॉड ऐसा आपको मैंने कहा कि यू नो द रॉड इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो समझ जाना है कि यार यहाँ पर ना अगर रॉड जा रहा है तो वोल्टेज आएगा और वो वोल्टेज का वैल्यू BLV होगा. ठीक है. So I will be Akhil, you'll get the slide tomorrow, beta. I mean, not tonight itself, you'll get the slide. So I'm sure you're not going to study the moment the lecture gets over, right? So you will get it within minutes. I'm sure sir also puts it immediately. So I think you can have that much patience. Okay, so don't write anything, pay attention. Thoda dekh lo, because what happens in MCQs is it's not only about the formula, it's about the understanding also. So अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी देखो रॉड का वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, तो रॉड अगर ऐसा डायग्राम दिखा तो उसको रिप्लेस नीचे वाले डायग्राम से करना है, उसको रिप्लेस नीचे वाले डायग्राम से करना है. Is it clear, everybody? Now these are the tricks that I have written, what I am showing you on the screen, which will really help you. You can trust me. These are all NEET का shortcuts. तो ये अभी शायद आपको उसका सीरियसनेस समझेगा नहीं, बट जब आप really बैठ के NEET के क्वेश्चंस करने लगेंगे, so this will be very helpful. So right now I'm just introducing the formula. ठीक है. ये सब MCQ में आता है. ये सब आप अगर US स्कैन करके देखेंगे ऐसे डायग्राम्स दिखेंगे आपको. अगर आप अरिहंत खोल के देखेंगे आपको यही डायग्राम्स दिखेंगे. So you don't have to remember the diagrams. You have to think कि अगर मैंने किसी रॉड को पुश किया है, ऐसा एक रॉड है और उसको मैंने राइट में लिया और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. यू नो राइट हैंड रूल ना, अभी तो बताया तुमको. राइट हैंड रूल में थंब अगर राइट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, सो यू कैन सी दैट आपका EMF किधर है. आपको थोड़ा पहले बताया ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, बिकॉज योर मिडिल फिंगर विल लुक अप. सो उसी का मैंने इक्विवेलेंट यहाँ बनाया है. मतलब यू हैव टू थिंक दैट वो बैटरी बन जाता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा अगर सर्किट है, क्योंकि अभी करंट फ्लो होगा इसके अंदर से. सो दे आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है आपको? यू विल गेट इट. आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. आई पर्पसली हैव केप्ट इट फॉर द लास्ट लेक्चर. आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि ये जो स्लाइड है आपको ओपन रखना है. ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी रिपीटेड, बट दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स जो आपको याद करना है. Okay, the next formula, everyone knows the formula वैसे. Everyone knows the formula, Faraday's and Lenz's law, right? So I'm putting the formula number 2 for you to write. That is Faraday's and Lenz's law. That is E is equal to minus N d phi by dt. ये आपका second formula है और आप ये लिख सकते हैं. This can further be written as minus N. I can write it as phi 2 minus phi 1 upon, this is written as normally T minus 0. So you can write it as T also. So this is Faraday's and Lenz's law, which will be your second formula. You can also further write it in terms of, I think हमने लिखा भी रहेगा, you can write it in terms of AB or BA cos theta upon dt. So you can write it in this terms also. Okay, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, B into A, ये समझ के कि फ्लक्स आपका क्या है, मैक्सिमम है. Now you can also write this E as I into R. I hope you agree. EMF को आप I into R
नीरज, हम चीजों को बाहर तब लेके जाते जब वो कांस्टेंट है. सो आई एम नॉट कंसिडरिंग द केसेस. अगर बी कांस्टेंट है तो बी बाहर जाएगा, अगर ए कांस्टेंट है तो ए बाहर जाएगा. ठीक है. सो इस ई को हम आई आर बी बोल सकते हैं, एंड आई आर इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी. Now, what is I? I is nothing but dq upon dt, which is equal to minus n upon r d phi upon dt. So what happens to dt dt? It gets cancelled. Therefore, dq is equal to minus n upon r into d phi. Minus n into r into d phi. So can you take this down? So these are different ways of representing. And यहाँ पे dq को बोल सकते हैं induced charge. It is called induced charge. Is it over? Well, so that's formula number 3 for you. अब इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Now I am coming to something like that. Now pay attention. ये जो dq है, ये जो dq आपको मिला है n by r into d phi, we can further write it in terms of power also. Now you know what is E, right? E is nothing but, अब भी हमने बोला कि E is nothing but d phi by dt. So let's write power also. Now let's see how to write power. E is nothing but mod ले रही हूँ मैं, n d phi by dt होता है, right? N d phi by dt. So you can write it with me so that you know what I am pronouncing. So mod of E is equal to n d phi by dt, and this power क्या होता है? Have you heard of the formula V square by R? So it is as good as writing E square by R. So that means I can write power as n square upon R d phi upon dt the whole square. I hope this is understood. This is the formula for induced power. So these will be very important when it comes to numericals. लेंसेज लॉ मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है नॉर्थ आया तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ गया तो साउथ बनेगा, साउथ आया तो साउथ बनेगा, साउथ गया तो नॉर्थ बनेगा. So today somebody had sent me a doubt asking for what is the meaning of opposition. So this is something that we do in Newton's law also, and the same thing we are seeing in Lenz's law. So those who have missed Lenz's law, I want you to listen to that lecture as many times as you can, because that is one very basic, very important factor of this chapter. जिसको Lenz's law नहीं आएगा, उसको obviously chapter नहीं समझेगा. So now let's see what is E. So if you remember straight conductor, याद है एक formula था E is equal to BLV. इसको दो parts में हमने divide किया था.
I hope you remember this. अगर हम लोग rod की बात करते हैं, rod is falling, then we normally use the formula BHLV, right? And if I say, for example, meter gauge of a train, meter gauge of a train, or I talk about any kind of wheel, if I'm talking in terms of anything that is horizontal, then if you remember, it was BVLV. So if you're talking about meter gauge of a train, when we're talking about, and not the bicycle wheel, okay? When I'm talking about the wheel of big, you could say big vehicles, that time I can talk about BVLV. If you remember, we applied the same thing when we're talking about an aeroplane. So aeroplane, wings of the aeroplane, if you remember, we had used the same thing. Helicopter के लिए हमने ये formulas use किए थे. So then formula number 6. So if you already know what is the force, यानी कि we know what is the induced EMF, we know अगर आपको induced EMF पता है, for example, a rod is moving horizontally. अगर a rod is moving horizontally, ये कब होता है? जब rod गिरता है कि नहीं? बट अगर आपने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा कि rod was moving horizontally, अगर rod horizontally move करेगा, then obviously उसका अगर वो horizontally move करेगा, the EMF will be BVLV. Don't you agree? So it depends on the velocity. अगर velocity का direction नीचे की तरफ है, तो obviously आपका EMF का जो magnetic field हम consider करेंगे, that will be vertical. So if this is moving horizontal, then this is obviously vertical. So it is B suffix V, L into V. Now, if you know this, then we can obviously write, we know that E is equal to BVLV. What is this? This is I into R is equal to BVL into V. So I is nothing but BV into L V upon R. है कि नहीं? ऐसा भी लिख सकते हैं आप. Agreed? So we can write it in terms of ये जो EMF है, we can write it in terms of resistor also. ठीक है? So you can write it general also. अगर आपको, it can be BHLV upon R, it can be BVLV upon R. So I'm trying to correlate the next formula now. So ये हमारा formula number 6 था. Formula number 7. I can bring in force also. What is force? Force is nothing but BIL. Force is nothing but BIL. अगर force BIL है, so then I can write B और I क्या लिख सकते हैं? Can I write BLV? है कि नहीं? BLV लिख सकते हैं, or you can write BVLV also, whatever you feel, and upon R into L. ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मुझे जो फोर्स मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? B square L square V upon capital R. ठीक है? तो स्पेसिफिकली मैंने वो BVLV नहीं डाला. So we can get this formula also. This is the force which is acting on that particular rod. कितना force act कर रहा है पूछा, then this is the force acting on a rod which is moving towards the right. अगर कोई भी rod right side में move कर रहा है, this is the force acting on that rod, that is B square L square V upon capital R. I hope ये clear है आपके लिए. If a rod is rotating, ये तो सबको पता है, if a rod is rotating in magnetic field, so if the word comes, the rod is rotating, not moving, then we know that we have formulas like BLV by 2. Then we have formulas like BL square omega by 2. Then you know that E is also B pi L square F. And we also know E is equal to B pi L square upon T. So ये हमारे distinct formulas हैं for bicycle wheel. So अगर आपको याद है, spokes of the wheel and all we have done. So please take down this slide. I can go to the next previous slide. Just wait. If you have not completed CN, I'll go back.
I hope everyone is writing the formulas. Yes, spokes, वही बोला मैंने, spokes of a wheel. This was, and कितना भी spokes हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, because if this is rotating with some omega. Yes, Ram. Let me just finish. Let everyone finish this slide and then I'll go to the previous slide. Yeah. So I got some wonderful pics of the transformer again. It's like a never ending journey. Every morning I get up with somebody sending me a picture of transformer. So the competition is getting very tough now. Because some pictures are like लोगों ने यार क्या क्या मतलब मुझे लग रहा है घर के बहुत सारी चीजों को खोल के रख दिए वहां पे, ट्रांसफॉर्मर के खोज में रख दिए. So every morning when I get up, I have somebody's message from some batch talking about it. Yes, Manav, I got yours also. Yes. So I'm like, पहले लिस्ट में बहुत कम जन थे, अभी कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है. सीरियसली मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इतना एंथुसियाज्म नहीं देखा. I'm really telling you that you all are super fantastic. Keep up the energy. You know, keep up the energy. I have seen some other people taking online class, and I was feeling so sad for the teacher. No response only. And I said, you come to SDC, meet our 12th standard. तुम तो पागल हो जाओगे. मतलब मैं ऐसा उनको बता रही थी, मतलब वो इतने परेशान हो गई थी क्योंकि वो एक ही चीज 10 बार बोल रही थी, वहां से एक भी आंसर ही नहीं कर रहा है. मैंने बोला यहाँ ऐसा होता है कि यार इतना चैट आता है कि कभी कभी मेरा मिस आउट हो जाता है. फिर पब्लिक भी आजकल स्मार्ट हो गई है, कॉपी पेस्ट कर करके मार डालेगी. मतलब तुमने कैसे नहीं पढ़ा है कि नहीं, मतलब वही चीज बार 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 पूछकर जो है, इसको लव ऑफ फिजिक्स बोले क्या टॉर्चर बोले कि क्या पता नहीं, बट ये तो क्या बोलो ही मत. मतलब जब तक है जान हम रिपीट कॉपी पेस्ट करेंगे, जब तक है जान. एकदम एकदम दृढ़ निश्चय के साथ आए. Can I show you the okay, have you finished the slide? Okay, so Ram wanted the previous slide. I'm just showing the previous slide. If you guys have not taken it down, please take the slide down. 11th वाले भी बहुत तेज हैं. माय गॉड, 11th वालों को तो आई मीन एटलीस्ट आई फील समटाइम्स यू ऑल आर शाय, दे आर नॉट इवन शाय. हमको अभी अनम्यूट करो, अभी आंसर बताएंगे. मतलब वो लोग तो ऐसा है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टूडेंट और वो टीचर है. बट एक ही इट्स दे आर आई डोंट नो, दे आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट. तुम लोग तो अभी सीनियर हो गए हो ना, यू ऑल आर द सीनियर्स. तुम लोग अभी ज्ञान दोगे ना दुनिया को, हाउ टू स्टडी ऑनलाइन. फिर तुम बहुत सालों बाद याद करोगे, अरे हमारे दिन में ना एक कोविड आया था, पैंडेमिक आई थी और हमने जो घर पे बैठ के पढ़ाई की. तुम सोचो कितना, मतलब यू ऑल आर द यूनिक बैच ना. हैवंट यू ऑल थॉट अबाउट इट? तुमको एक कहानी है रेडी तुम्हारे लाइफ में बताने के लिए. जैसे लोग बोलते थे हम वर्ल्ड वॉर 1 में पैदा हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में पैदा होते, तुम बोलोगे कि यार हमने HSC पैंडेमिक में दिया था. करेक्ट. वही शिवम, शिवम लिख रहा है इतनी पढ़ाई की पढ़ाई कुछ भी शर्म आ गया. माय गॉड. कैंपस लाइफ तो बट इट्स ओके. 11th 12th का वैसे भी कहाँ कैंपस लाइफ होता था, सिर्फ जर्नल लिखते हैं. कहाँ का कैंपस लाइफ. मैंने तो सिर्फ साइंस वालों को जर्नल लिखते हुए देखा, जब देखो जर्नल लिख रहे हैं. कुछ भी होमवर्क देने को बोला, मैम जर्नल लिखना है, मैम जर्नल लिखना है. तुमने अभी लाइफ में जर्नल लिखा है क्या?
आई डाउट। इंजीनियरिंग में तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एवरीथिंग इज प्रिंटेड जर्नल, सिर्फ रिजल्ट लिखते हैं लोग। बट आई रियली अप्रिशिएट कोविड बैच, मतलब सल्यूट टू ऑल यू गाइस, मतलब ये तो हम नहीं कर पाते। मतलब सच्ची में हमें इतना पेशेंस नहीं होता कि हम 1.5 आवर 3 घंटे का लेक्चर बैठे। मतलब आई रियली सल्यूट यू गाइस, मतलब पर्सनल सल्यूट है। Because it's not possible. Anyway, is this over? Is the slide over? Nine. नाइन्थ में आप ऐसा लिखे, एवरीवन मस्ट हैव रिमेम्बर्ड एडीज करंट, राइट? तो एडीज करंट जो है क्यों होता है सबको याद है। एडीज करंट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ transformer. Eddy's current happens that, you know, if there is a plate, there is electrons moving in circular direction. I hope you remember all that. So, but Eddy's current had some good things about it. You remember? So it is used in speedometers. It is used in speedometers. आपका बाइक, आपके कार का जो स्पीड दिखाता है, तो उसमें एडीज करंट, सोचो ना वो पॉइंटर एकदम फटाक से रुक जाता है, तो स्पीडोमीटर्स। इंडक्शन फर्नेसेस, यू नो, इतना हीट पैदा होता है ना कि इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं, मेल्ट हो जाता है मेटल। कैन यू इमेजिन? इंडक्शन फर्नेसेस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ये तो मैंने आपको समझाया था कि ट्रेन के व्हील पर, सो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में यूज होता है, सेम एडीज करंट का एप्लीकेशन होता है। एंड वी कुड से डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, बिकॉज आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर्स मेजर परफेक्ट एकदम एक्यूरेट करंट्स, तो उनका जो पॉइंटर रहता है ना वो रुकता कैसे है, इट्स अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ एडीज करंट। सो एडीज करंट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, बट हमने उसको, उस डिसएडवांटेज को हम हमेशा अपने एडवांटेज में लेते हैं, है कि नहीं? हम काफी स्मार्ट है वैसे देखा जाए तो। Another thing, before I forget, you remember, I had told you कि अगर एक रॉड हाइट से गिर रहा है, I don't know if you remember, I had told you कि अगर वो बोलते हैं कि it is, you know, falling from a particular height and it is in a uniform magnetic field, है कि नहीं? It's always in a uniform magnetic field. I told you to remember V square is equal to U square plus 2GH. I don't know how many of you all remember. और U को हम लोग 0 लेते हैं because initial velocity is 0 and V is equal to under root of 2GH. तो जो EMF आएगा, it is going to be, ये नीचे गिर रहा है ना, so BH L, और ये जो V होगा इट इज अंडर रूट ऑफ 2GH, BLV होता था ना, सो V के बदले लिखना है अंडर रूट ऑफ 2GH। यस, इट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन। यस प्रथम, मतलब तुझे फिजिक्स आता है। चलो, फिजिक्स इज अ वंडरफुल साइंस। जिसको फिजिक्स आ गया वो जीत गया। ये एडीज करंट का एक दूसरा नाम था। एनीबडी रिमेम्बर्स द अदर नेम ऑफ एडीज करंट? लेट मी सी हु इज गोना आंसर फर्स्ट। एक दूसरा नाम था इसका। Anyone who remembers Eddie's current? Oh God. Abhishek, Bhakti, Shreya was the first one who answered. पहला किसने बताया? ये प्रॉब्लम होता है चैट बॉक्स का। अंकित यादव ने पहले आंसर दिया। Yes, all of you are absolutely correct. It was called as Foucault's current. याद है क्या? Foucault's current कहते थे उसको। क्यों कहते थे इसको Foucault's current? क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम Foucault, who discovered or who observed the phenomena of eddy's current. Have you finished till now? 10 तक हो गया? I hope everyone is writing. मैं नहीं तो पूछूंगी PDF भेजो करके। अच्छे से लिखो, लाइफ में काम आएगा। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपके पीछे जो भी आएंगे वो भी आपके, यू नो, कुछ लोग ऐसा इतना नीट लिखते हैं ना जैसे वो बेचने वाले वो बुक को, मतलब कुछ लोग ज्यादा ही नीट लिखते हैं।
रेड लाइन राइट साइड पे मारा, फिर एक ब्लू लाइन लेफ्ट साइड पे मारा, फिर एक ग्रीन लाइन बीच में मारा। और कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि वापस हम ये पढ़ने ही नहीं वाले, मतलब वैसे एक फिनोमिनन में लिखते हैं। मैंने दोनों टाइप देखा है। एक तो इतना मेहनत से लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली यार ये नोट्स तुम लोग आइदर प्रिंट मार के बेच दो, इतना नीट रहता है ना। सीरियसली आई रियली फील दैट सम आर सो नीट। और कुछ जैसे वो पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब बाजू से कोई जाएगा उसको भी नहीं समझेगा क्या लिखा है, सिर्फ उसको समझेगा। इट्स लाइक अ सीक्रेट, सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट कोड। Is it over? Done? Everyone done? Anyone? I have to Ram. Ram is the one always will tell me, wait. Ram हो गया तुम्हारा? तुमको ही पहले पूछते. Okay. So I'm moving on to formula number 11. No, Samir sir's handwriting is very good. Samir sir is my professor also. I am Samir sir's first private batch student. 1998 की बात है. समीर सर का नोट्स मैंने एटलीस्ट इंजीनियरिंग के आई थिंक आई केप्ट इट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 years because it was so good. I mean, it was so neatly written. You know, सर का तो एक लाइन दूसरे लाइन में भी नहीं आता. Sir's handwriting is fantastic. No competition. And I really wish that you could see him writing on chalk and मतलब वो blackboard पे अगर आप देखेंगे समीर सर का handwriting, तो I cannot explain to you how beautiful it was. मतलब he is equally good on the whiteboard, but that blackboard पे जो दिखता था ना, आज भी मुझे याद है कि how his handwriting is very good. Yes, Karthik, I agree. Okay, चलो, let's go to question number 11. Okay, question number 11. Question बोल रही हूँ मैं. Point number, yes, Manish. Yes, absolutely, I agree with you. So point number 11. So if you talk about self-induction, what formulas come under self-induction? वैसे मेरा handwriting अच्छा है, but this digital handwriting I have a little problem. Yeah, I really have. I can't explore myself, I should say. Flux is proportional to I. Flux is equal to M into I. ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लिखवा रहे हैं हमसे. कभी कभी ऐसा फील होता है. So therefore d phi by dt, the EMF induced is called as back EMF, which is minus L di by dt. मुझे ऐसा लगता है कि मशीन लिख रहा है, मेरा हाथ, machine is using my hand. It feels like that. This is called back EMF or counter EMF. Back EMF or counter EMF. Thank you, Bhakti. Lots of love to you. Counter EMF. Okay, so now this is nothing but, I hope everyone is paying attention. एक और फॉर्मूला था L का. ये M कहाँ से आ गया? तुमने नोटिस नहीं किया मैंने M लिखा है यहाँ पर? ध्यान दो guys. So L is equal to phi upon I. और एक दूसरा वाला फॉर्मूला था, किसको याद है? ऐसा कुछ था, म्यू नॉट N square A by L. भूलना नहीं है. Mu naught permeability, N is number of turns, A is area of cross section, and L is nothing but the length of that coil. And we also had energy of the inductor. So I'll write the energy of the inductor here also. It's half Li square. And if they are in series, then please treat them as L equivalent. अगर series में है तो L1 plus L2 करके ही treat करे, just like resistors. So this is for series connection. अगर inductors are connected in series, and if they are connected in parallel, it will be taken as product upon sum, L1 L2 upon L1 plus L2. Please complete it nicely. If you have any doubt on this page, please ask. कुछ लोग कैसे ना फटाफट कंप्लीट करके ना फिर चैट करना चालू हो जाता है. आप समझता है मुझे. देख लो भाई, देख लो, सही लिखा है कि देख लो.
चेक कर लो, चेक कर लो। पैरेलल, एक पैरेलल कनेक्शन, नीचे वाला पैरेलल है और नीचे ऊपर वाला सीरीज है। पैरेलल इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, और अगर सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है। अभी मैं फॉर्मूला पूछने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कीप प्रेजेंटेशन। अभी मैं ना रैंडमली लोगों को फोन आएगा, अभी मेरे मेरे यहाँ से फोन आएगा, रैंडमली मैं पकड़ने वाली। तुम देखो मैं क्या, एक्चुअली मुझे बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं, तुम छूट तो दो। मैं तुमको 5 बजे 6 बजे उठाऊं। मैं एक फ्री लेक्चर लेने वाली हूँ, मैं बताऊंगी आप लोगों को। सो इन केस यू ऑल आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। आई बी टेकिंग, तुमको उठाने का है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स लाइक हु वांट्स टू अटेंड ओनली दैट। आई विल बी टेकिंग ऑन एमसीक्यूज ओनली, तो जिसको इंटरेस्ट है वो आके ज्वाइन कर सकता है। सो एवरी डे, मतलब मेरा ऐसा टारगेट है, एवरी डे 10 क्वेश्चंस, सो हाफ एन आवर का होगा। यू नो, मैंने ऐसा सोचा कि अगर रोज हम 10-10 क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू सिंपल क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा हाई लेवल। अगर आप लोग एग्री करते हैं देन आई विल श्योरली पुट द लिंक, और जिसको इंटरेस्ट है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसको इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएंगे, बिकॉज सिंपल वाले तो आप काफी कर ही रहे हैं, है कि नहीं। वॉट एवर इज योर टाइम, मैं पूछूंगी आप लोगों से कि कौन से टाइम में आप फ्री हैं, और मैंने ऐसे ही सोचा कि थोड़ा इट वो भी रहेगा, लाइक मॉर्निंग रहेगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस गेट अप अर्ली, बिकॉज द न्यू जनरेशन इज मोर ऑफ नाइट पीपल, तो ये मॉर्निंग लोग बहुत कम रहते हैं। हाँ, ऐसा लाइक 6 या 7 या 8, आई डोंट नो व्हाट टाइम यू ऑल गेट अप। कुछ लोग तो 6 बजे सोते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस। So then they are also good children only, but their timings are quite different. They are American children born in India. कुछ लोग अंग्रेजी लोग यहाँ पैदा हो गए ना, मतलब लास्ट जन्म वो लोग अंग्रेज थे, तो फिर उनको एडजस्ट नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अंग्रेजी जो अमेरिकन वाले हैं, वो लोग यहाँ पैदा हो गए, तो रात को नींद नहीं आती उनको। वो लोग सुबह दोपहर को सोते हैं, कुछ लोग लेक्चर में भी सोते हैं। करेक्ट। प्रथम, सारे सीक्रेट्स बाहर मत निकालो, वो बोल रहा है वेब सीरीज देख के सोते हैं, या आई नो आई नो। तुम्हारा कौन सा वेब सीरीज चल रहा है अभी? हो गया ना ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई थिंक ऑल द फेमस वेब सीरीज आर ओवर। चलो हो गया 14 तक सबका। तूफान तो मूवी है ना, वेब सीरीज का है। सीरीज तो हो गई, कौन सा बचा है? मैंने तो सब कुछ देख लिया अभी तक। 14 हो गया, चलो 15. So I'll explain to you these. I will come back. So just keep it in your slide. Okay, ये important questions है, ये higher level के हैं. So I thought जो आता है पहले वो लिख लेते हैं. Mutual induction. अरे वो तो कब का हो गया, फैमिली मैन तो कब का देख लिया। मनी हाइस्ट इतना लंबा चला, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही कहीं मतलब कैरेक्टर ना बन जाऊं उसमें। मनी हाइस्ट वाज टू बिग यार। म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, लेट्स कम टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी में है। M is nothing but phi upon I. Again, phi is proportional to I. M is phi by I. M is mu naught N1 N2 A by L. Okay. M is equal to phi by A. M is equal to mu naught N1 N2 A by L. And M के कुछ units हैं. Everyone remembers, I don't know. Weber per ampere, volt second per ampere, ohm second या Henry. And it is the same for self induction also. इसका फॉर्मूला था M1 L2 T minus 2 I minus 2, इसका डायमेंशन ऐसा था. And if you remember, we used to write E2 is equal to minus M di1 upon dt. So we used to write M12, ऐसा भी लिखते हैं, flux in 1 due to current in 2, or M21 which is flux in 2 due to current in 1. So this is the right way of writing.
म्यूचुअल इंडक्शन के सारे फॉर्मूलाज. Anyone from Divine Child here in this class? It's my school, so I'm just asking. अंधेरी वाले रहेंगे अगर है तो. Okay, it was your center. Okay. Bushra. Oh, Shreya, you're from DC. Good to know. Holy Family तो boys school है, right? Please complete mutual induction. Okay, Mathali also. Mathali. Completed, guys? Yeah, I can wait for a minute. Yeah. Ram has completed. Ram का भी fast हो रहा है देखो. So one day I will see all of you all as doctors and engineers. What a fantastic day it will be. I'm just wondering. I'll be passing by the road and you'll say that I am a doctor. I am an engineer. I'm doing this. Done, everyone. Sanya is finished. Okay, done. So mutual induction is done. So, these are some of the formulas which I will be discussing on the higher level. So those are the formulas that you see on the left hand side. That is if the shape changes, how mutual. So हम जो पढ़ते हैं ना वो यहाँ पर लिखा है मैंने. हम जो म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह पढ़ते हैं वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है. और जो हायर लेवल है, हायर लेवल मतलब जो जेई एडवांस दे रहा है या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है, उसको मैं नीचे के कुछ फॉर्मूला समझाऊंगी. दैट मीन्स आई विल टीच यू व्हेन आई एम डूइंग नीट प्रॉपरली आफ्टर वी हैव फिनिश्ड विद द पोर्शन. अच्छा, देयर वाज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कितना हुआ? 15 हुआ, राइट? 16. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग याद है ना सबको? So coefficient of coupling was m is equal to k times of root of L1 L2. Where k is called coefficient of coupling. K का maximum value क्या है? K का maximum value क्या है? अगर k 1 है, that means coupling is maximum. So don't forget this, okay? Coupling is max. So 1 के ऊपर नहीं जा सकता. किसी ने मेरे को डाउट पूछा था, मुझे अभी याद नहीं कौन था वो. डू यू रिमेम्बर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमने किया था, सी डीवी बाई डी. हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था. If you remember, I'm just putting it here. Displacement current was epsilon naught d phi e by dt. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था. I'm just writing it down here. ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ था. So I'm just writing it here because capacitor involved है यहाँ पे. So displacement current. Displacement current. Displacement current. Done. Prabodhita, Mehak, everyone is finished. Ram is finished. Isha is finished. Atharva, Hemangini, Mansi. मेरे को रात को भी तुम लोग के नाम याद बाय हार्ट हो गए. Anav, Sania. Okay. Now let's go to the next one. 19. So this is something that I just thought like हमने induced EMF तो किया है ना. So induced EMF के भी कुछ extra ज्ञान है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. Increase current, decrease current. So all this I have to tell you in important. So मैंने just slide डाला है. You can read it as per your convenience, but this is something that I will be teaching you on a higher level. So कुछ मैंने ऐसे भी slides डाले हैं. Increasing, decreasing. तो देखेंगे बाद में. ये तो इंडक्टर वाला ही है जो मैंने लेफ्ट साइड पे डाला है. सो डोंट वरी, कुछ स्किप नहीं होगा, सब कुछ कवर होगा.
मतलब तुमको तो खा पी ले, मतलब फिजिक्स खा पी लेंगे, तुमको नहीं खा रहे, फिजिक्स खाने वाले. So if the coil is rotating, if the coil is rotating, I sometimes feel I'm a radio jockey. Coil is rotating in uniform magnetic field. Coil is rotating in uniform magnetic field. वो बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, वैसे आजकल आप लेक्चर सुन रहे हैं. कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ई इज इक्वल टू बनाम साइन थीटा. अब मैं अपना नया एफएम चैनल खोलने वाली हूँ, एफएम फॉर फिजिक्स. तुम देखो, आई ऑल्सो ओपन माई चैनल नाउ. 2020-21 पे खुलेगा. E is equal to ban omega sin. So this is called as बनाओ BAN omega sin of omega t. I hope आप ध्यान भी दे रहे. So I really want your concentration also. E is equal to, check करने के लिए कभी कभी I will keep asking you certain things. So E is equal to E naught sin omega t. अच्छा, किसको याद है, ये सब नाम याद है? ई नॉट का नाम था पीक वैल्यू. पीक वैल्यू जिसको हम क्रेस्ट वैल्यू भी कहते थे. ई का नाम था इंस्टैंटेनियस वैल्यू. तो आपको समझेगा, यू नो लुकिंग एट ऑल दीज फॉर्मूलाज, आपको समझेगा कि कौन से लेक्चर कौन सा मिस हुआ है, कौन सा फॉर्मूला मिस हुआ है आपका. तो आप समझ जाएंगे, यार इस लेक्चर में मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये लेक्चर नहीं आता है, एंड सो ऑन. सो इंस्टैंटेनियस वैल्यू, एंड दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी. E is instantaneous value of EMF, yeah. And E naught is peak value of EMF. E मतलब EMF, yeah. आएगा अखिल बेटा, आएगा. कहाँ लिखूं मैं? चैट बॉक्स में लिखूं? रुक जा अभी. 19 हो जाएगा तो फटाफट बताएं. हिमंगनी हैज फिनिश, शी इज डिक्लेयरिंग दैट हो चुका है. सी लेक्चर ऐसे होना चाहिए ना कि कब खत्म होता है तुम्हें पता ही ना चले, तो ही लेक्चर का मजा है. इज इट ओवर? या. सो नाउ 20. लेफ्ट साइड नहीं देखें. सो ई इज, जो हमने अभी लिखा, ई इज नथिंग बट ई नॉट साइन थीटा. कैन आई से, या साइन ऑफ ओमेगा टी, कैन आई से ई इज नथिंग बट आई इंटू आर. सो ई इज नथिंग बट आई इंटू आर का मतलब है, अगर मैंने आपको करंट निकालने को बोला तो आप बोलोगे आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ऑफ ओमेगा टी. आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग. ये ई नॉट अपॉन आर को हम आई नॉट लिख सकते हैं. So this is written as I naught sin of omega t. अब आप देखेंगे I naught जो है, I naught जो है is E naught upon R. So maximum value of current is E naught upon R, which can be written as बनाओ. I hope everyone remembers बनाओ upon R, which is nothing but BAN. ओमेगा को क्या लिखूं मैं? Anyone? ओमेगा को क्या लिखूं मैं? ओमेगा को कुछ और लिख सकते हैं? Anyone who can suggest? ओमेगा के बदले, यस, राम एंड ईशा एंड एवरीवन इज आंसरिंग. सो ओमेगा के बदले लिखो 2 पाई एफ. है कि नहीं? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ. ओमेगा क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू एफ. 2 पाई एफ. लेफ्ट साइड बहुत सिंपल है, इसको टेंशन मत लेना. यस, एंगुलर मोमेंटम. यस, मोमेंटम. मोमेंट बोला तो वर्ड चेंज हुई. ट्वेंटी इज डन. 21 भी यहाँ पर ही लिख दो. फॉर्मूला नंबर 21, आरएमएस वैल्यू. एवरीवन नोज आरएमएस वैल्यू. तो ई आरएमएस इज ई नॉट बाई रूट 2
which is nothing but 0.707 of E naught. Yes, Cian, I'll show you. Let me just finish. Cian wants 19. So I'm going to go back. Please finish till 21. I'll go back to 19, Cian. Any doubt till here? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है? RMS वैल्यू का दूसरा नाम क्या था? RMS वैल्यू का दूसरा नाम क्या था? Anyone remembers? Yes, it is called as virtual value, or it is called as, yeah, it is called as virtual value, or it is also called as peak value. Don't forget that, okay? CR 19 आपके सामने. ओमेगा को 2 पाई एफ डाला, अथर्व. ओमेगा इज 2 पाई एफ. CN, tell me when you're done with 19. A Abhishek. A Abhishek. कुछ लोग तो मुझे लगता है ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहे हैं, मैम 18 दिखाओ ना, मैम 16 दिखाओ ना, मैम 17 दिखाओ ना. आई विल पास द पावर पॉइंट, दैट टाइम यू देखो, ओके? कुछ लोगों कुछ चाय पी रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे, अरे मैम जरा वो पहले वाला 2-3 स्लाइड पीछे जाओ ना. तो मैं ना अपने नखरे अपने पास रखो. देखो, yes, some of the girls agree that I'm right. So therefore, this is 21. नखरे है ना, तुमसे सीखे कोई भाई. So now, so this ERMS is called as root mean square value. Yeah, it is called as, virtual value, or it is also called as effective value. See, very less formulas are there actually. मेरे हिसाब से at least 100 तो होने चाहिए. Anyway, so IRMS is nothing but ERMS upon R. So this is 22. अच्छा, ये 22 था क्या? पहले वाला 21 था. I thought I'm answering the same RMS only, na? That's why I didn't put it as separate. समझ रहा है? 21 में वही है ना, RMS ही है. अच्छा, घर पे जो वोल्टेज आता है, हाउस होल्ड सप्लाई, वो कितना होता है? 220. वो कौन सी वैल्यू होती है? ERMS की होती है. एवरीवन एग्रीज? सो ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2. अगर RMS वैल्यू, सो यू कैन से दैट फॉर डोमेस्टिक मतलब समझता है सबको, राइट? सो फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ERMS is 220 volt. ERMS is 220 volt. Therefore, can I say E naught will become a √2 into 220? This comes to, मतलब peak value कितना है आपके घर तक आने वाला? peak value कितना है? It is approximately 311 volt. Peak value that is coming to your house is nothing but 311 volt. अच्छा, a very simple question I'm going to ask you. क्या एक DC एमीटर AC वोल्टेज या करंट को मेजर कर सकता है? एक DC एमीटर क्या वो AC करंट को मेजर कर सकता है? क्या एक DC एमीटर AC करंट को मेजर करता है? यस और नो में आंसर. आंसर इज नो. कोई भी DC का मशीन AC के किसी भी करंट या कोई भी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता. विल यू रिमेंबर दिस? क्या ट्रांसफॉर्मर DC में चल सकता है? क्या ट्रांसफॉर्मर DC में चल सकता है? 100% नो.
चैट बॉक्स में ना तुम लोग नो तो कर ही लेते हो, ये पोल में तुम्हारे साथ क्या होता है? पोल जब आता है तो 90 के ऊपर हम जाते ही नहीं है, 100% तो कभी आता ही नहीं है। जब पोल करते तो क्या होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हाँ वही, अच्छे दिन तुम्हारे तुम्हारे आएंगे, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। ओके, आई होप 23 इज ओवर। अच्छा, 24 में ना, आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग वेरी क्लियरली. See, most of the time when we say when we talk about alternating current, you always think of this wave, right? You always think of this value as nothing but E naught. This is your E. This could be your T or it could be your theta. You always think of this. If you think of this 0, this is T by 4. This is T by 2. This is 3T by 4. This is T. I think most of the time you kind of think about these kind of waves, right? But listen to me very carefully. It is not necessary कि wave से वही nature का हो. ओके, सो हम ट्रायंगुलर वेव को भी कभी कभी कंसिडर करते हैं, मतलब प्लस माइनस ट्रायंगुलर वेव्स भी कंसिडर होते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड करेक्ट. सो आपको सिर्फ साइनसॉइडल पढ़ाया जाता है, बट व्हेन यू गो टू हायर लेवल्स यू विल रियलाइज कि दोनों हम सीख सकते हैं. सो ये ऐसा भी होगा, इज दैट क्लियर? प्लस माइनस प्लस ऐसा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर pulses होते हैं. So we'll call it as rectangular or square pulses, and this is nothing but the triangular one. So ये लोग भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं. So they are also correct. सिर्फ उनका इक्वेशन थोड़ा अलग रहता है, आप समझ रहे हैं? It will not be E naught sin omega t. It will not be E naught. It is not a sinusoidal wave, right? So how can it be the same equation? Equation अलग रहेगा, बट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. तो ये वाला कौन सा था? ये साइनोसॉइडल था, तो इसके इक्वेशन में हमको वो साइन वगैरह आ रहा है. सो रेक्टेंगुलर इसमें वो नहीं आता है, साइन या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है ट्रायंगुलर या रेक्टेंगल में. याद रहेगा? याद रहेगा? थोड़े थोड़े नुस्खे बता रही हूँ, पूरा बताएंगे तो यार सोचेंगे कि क्या चल रहा है. डन. फिजिक्स का एफएम चल रहा है. Okay, so this was formula number, or the, I wanted you to remember it as separately as 24. Now 25. 25 लिखिए transformers. 25 please write transformers. Transformers में जो formula है, I am writing them all together. So E is nothing but, E1 is nothing but minus N1 d phi by dt. E2 is nothing but minus N2 d phi by dt. E1 upon E2, E1 upon E2 is nothing but N1 upon N2. है कि नहीं? They are directly proportional. अगर efficiency 100% है, then E1 upon E2 is equal to I1 upon, no, if 100% है, then it is I2 upon I1, which is equal to N1 upon N2. Transformer works on the principle of mutual induction. So don't forget that. You can always write it down. Efficiency of a transformer is always given as output power upon input power. So I put all the transformer together. That's why I put it as 1, 2, 3, 5 under 25. So efficiency is nothing but E2 I2 upon E1 I1.
So you can write capital E also if that is, or you can write it as S and P also, secondary and primary. And we had spoken about losses in a transformer. There are two losses. One is called copper loss and the other is called core loss. Right? कॉपर कोर लॉस के अंदर दो और लॉसेस आते हैं, उसका नाम है एडीज करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस. कोर लॉस के अंदर दो और आते हैं, दैट इज हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस. ये अभी अभी हुआ है, सो आई एम 100% श्योर दैट यू रिमेम्बर. बस इतना काफी है अभी के लिए. बेटर है इतना ही करें, ज्यादा नहीं करें. अब मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसलिए सारे फॉर्मूलास पहले लिख लो फटाफट. आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आर कमिंग योर वे. प्रथम पोलिंग नहीं, पोलिंग में ना तुम लोग जबरदस्ती मेरे को रॉन्ग आंसर देते हो. मैं करूंगी पोलिंग. देखा मीत का चालू हो गया. अभी 20 दिखाओ, ये दिखाओ. आई विल बी पासिंग दिस पीडीएफ इन अ फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ. ओके. हाँ प्रथम. सेल्फ सेल्फ प्रेजिंग बोलते प्रथम इसको. बोलो मैं क्लास को, तू क्या बोला? प्रथम शेट्टी, यू आर फ्रॉम विच बैच? कांदिवली, अंधेरी, बोरवली. दहीसर का है. ओ आई सी. बोरवली प्रथम बोल रहे, बोरवली. राम बोल रहे दहीसर का है. ओके. इज इट डन एवरीवन? फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस. CU करके लिखा है बेटा मैंने, शॉर्ट फॉर्म ना कॉपर का. केमिस्ट्री भूल ना जाओ. केमिस्ट्री इज अनदर लाइफ, बट फिजिक्स इज फर्स्ट लाइफ. So copper loss and then core loss. Done everyone? Okay, so we'll come to this later. Let's look at some easy questions first. So these were some neat questions I thought of doing. Okay, something that we know. Abhi ye wala question aapko aa jayega. So my main agenda was, now if you look at this question, maybe you will answer. देखते हैं कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन को. So this is AIPMT का मतलब होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको नीट ही कहते हैं. So let me see that which person will answer this question, क्योंकि ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके फॉर्मूला के शीट में है. So let's see who will answer this question. Atharva, I have not read your big long message of 4-5 pages. I will come back to it. Okay. Can you please copy paste that before we get over? कौन बताएगा आंसर? I'm waiting somebody. Yes, I can see a lot of correct answers in the chat box. Do you agree that the option is option B? है कि नहीं? हमने ये फॉर्मूला बताया था आपको कि BLV के जगह पे 2R डाल दो, है कि नहीं? BV डालने का और L के जगह पे 2R डाल दो, और फिर कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा? हाउ इट इज फॉलिंग, उसने बोला है कि वो वर्टिकली कैसे गिर रहा है. अगर वो गिर रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ. शुड आई शो यू द डायरेक्शन अगेन? वेलोसिटी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो वो R की तरफ देख रहा है. आई होप यू रिमेम्बर व्हाट आई एम सेइंग. Catch your hand to this side. My video is not because of my net issue. अगर आप थंब को नीचे पकड़ेंगे, पॉइंटर स्क्रीन की तरफ पकड़ेंगे, तो आपका मिडिल फिंगर राइट जा रहा है. राइट जा रहा है. So it's going to the right. So R is positive and P is negative. नुसरत ये वाला समझ रहा है आपको बेटा?
क्योंकि एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है. सो 2R, BV and R is at higher potential. R is at higher potential. I hope you can use the right hand rule here. Okay, let me see the next one. What about this one? There is a wire loop which is rotated in a magnetic field. There is a wire loop which is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF is, मतलब cycle, जो sinusoidal cycle होता है ना, when I say the frequency of change of direction, मतलब वो उल्टा कब होता है, वो उल्टा कब होता है. क्रेस्ट ट्रफ कितने टाइम में बनता है, क्रेस्ट ट्रफ कितने टाइम में बनता है. एक कॉइल है, so you can imagine any coil which is rotating in a uniform magnetic field. So you can imagine this coil, this is the north side and this is the south side. तो ये कॉइल को कितना चक्कर मारना पड़ेगा ताकि वो प्लस का माइनस हो जाए. यस, वेरी गुड. एक रोटेशन में वो 2 बार चेंज होता है कि नहीं. सो इट इज ट्वाइस पर रेवोल्यूशन. जब कॉइल फुल घूमता है तो 2 बार साइन चेंज होता है, प्लस फिर माइनस, है कि नहीं. सो देयरफॉर द आंसर इज ट्वाइस पर रेवोल्यूशन. आई एम डूइंग द इजी वंस फर्स्ट. ओके, ये तो आना ही चाहिए, ये तो मैं निकालूंगी लोगों को यहाँ से. एक चक्कर में कॉइल जब एक बार टर्न होता है ना मनीष, तो साइनोसॉइडल आता है. मतलब योर फ्रीक्वेंसी जो है 2 बार. सी द क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो एक बार पॉजिटिव आता है, दूसरा बार नेगेटिव आता है. और ये कब होता है, एक कॉइल एक चक्कर मारता है तो प्लस का माइनस होता है. डू यू रिमेम्बर हमने टेबल बनाया था बेटा, 0, T/4, T/2, 3T/4, याद है. वो एक बड़ा सा टेबल बनाया था, कॉइल रोटेट हो रहा था, तो उसी की बात हो रही है. समझ रहे हैं. उसको दूसरे तरीके से पूछा है कि कॉइल का क्या रिलेशन होगा. सेम थिंग आप MWC में भी कर रहे हो. ये बताओ, AC जनरेटर में a coil with n turns having area A and R rotates. अभी 2 वर्ड पकड़ना है. कॉइल रोटेट हुआ, सो विच ऑप्शन. तो सबको आना चाहिए. आया. एवरीवन एग्रीज इट इज बनाओ. डी ऑप्शन, बैन ओमेगा. पीक वैल्यू पूछा है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू. यस, आई एम डूइंग द इजियर वन फर्स्ट. ओके, व्हाट अबाउट दिस वन. You know how to do this type, right? We had done it just after when we were studying Faraday's law. When we were just studying Faraday's law, तभी किया था. एक तो डेरिवेटिव निकालना है इसका. डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सो क्या आएगा, 20t - 50 आएगा. फिर t को 3 डालना है, 20 × 3 डालेंगे, चलेगा. आ रहा है क्या आंसर. सो अगर हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव भी दिया है ना, तो मॉड में मत रखना. सो ई इज इक्वल टू -10 ही लिखना पड़ेगा फिर. ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे मत लिखो. फिर बाद में नेगेटिव, अगर ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है तो मॉड ले लेना. अगर नेगेटिव कंसिडर हो रहा है तो लास्ट में नेगेटिव कंसिडर कर लेना. ठीक है, बिकॉज मैंने मॉड में कैलकुलेशन किया. सो ऑप्शन बी होगा. याद रहेगा सबको. तो अगर ऑप्शंस में नेगेटिव है तो प्लीज कंसिडर करो. टेल मी दिस वन, किसका डायमेंशन है ये. Which of the following units denote the dimension ml² / Q²? Anyone who can think what is ml² / Q²?
यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट? ये m है, l स्क्वायर है, I मतलब चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम का स्क्वायर। सो दिस इज m1 l2, ये ऊपर जाएगा t-2 I-2। जाना पहचाना लग रहा है? अभी जाना पहचाना लग रहा है। चार्ज को क्या किया? करंट इनटू टाइम कर दिया। तो किसका है? विच ऑप्शन इज इट? हेनरी, हेनरी, हेनरी। -1 होता है वेबर, आई में -1 होता है तो वेबर होता है। (242), टेल मी दिस वन। डिस्कस हो चुका है मेरा, बट आई हैव टोल्ड यू दिस लॉन्ग बैक। सी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि आपको कि क्या वो मेजर कर सकता है? आंसर इज नो। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डीसी एमीटर, बट आंसर नहीं, डैमेज नहीं, आंसर डैमेज वाला कंसेप्ट नहीं। याद है आपको बोला था कि एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। एवरेज वैल्यू क्या होता है? कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0। इससे वो है आपका रीजन। सो दैट इज ऑप्शन ए विच इज द राइट आंसर। गॉट इट? Okay, now this is very simple. The core of any transformer is laminated. Lamination क्यों करते हैं? किसकी वजह से lamination करते हैं? Yes, very good. अभी देखो 100% आया, सब लोगों ने ए ऑप्शन मार्क किया है। एडीज करंट के हीट को कम करने के लिए हम ये करते हैं। ओके, दिस वन। In a transformer, sorry, coils, na, two coils are placed very close to each other. The mutual induction depends upon, mutual induction किसके ऊपर depend करता है? Does it depend on the rate at which the currents are changing? आराम से पढ़ना, is a very very interesting question. ये examination AIEEE का मतलब होता है JEE main होता है या MHCT level का होता है। Two coils are placed very close to each other. The mutual induction किस पे depend करता है? Does it depend on what current is flowing in them? Does it depend on the relative position and orientation of the coils? Does it depend on material? Position and relation orientation मतलब कैसे रखा गया उसको, उस पे डिपेंड करता है। मटेरियल पे डिपेंड करता है या करंट पे डिपेंड करता है? तो पहला चीज म्यूचुअल इंडक्शन में मेरे को बताओ कि अगर कॉइल को ऐसे रखा तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा? यस या नो? नहीं होगा। तो उनको पहले कैसा रखना जरूरी है? दे हैव टू फेस वन अनदर, नो, एक के पीछे एक रखना जरूरी है। डू यू एग्री? सो दिस इज करेक्ट। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इसमें नहीं होगा। तो आपको पहले सोचना है कि पहले कॉइल तो तू बराबर रख, फिर करंट का सोचेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर आपने बी सोचा है देन इट इज वेरी वेरी गुड। यानी कि आपको कंसेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता है? दे शुड बी फेसिंग वन अनदर, दे शुड हैव कॉमन एक्सेस। So there is a conducting square loop which is moving in its plane, and there is a magnetic field here, and it is perpendicular to the plane. ऐसा तो हमने पहले भी देखा है। तो induced EMF का फॉर्मूला क्या रहेगा? induced EMF का फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉइल को मूव कर रहे हैं, कॉइल को पुश कर रहे हैं। बहुत ही क्लियरली आपको समझाया गया था। यस, महक, राम, मानव, पूजा सिंह, मानसी, अंबुज। यस, द राइट आंसर इज BLV। याद है हमने डेरिवेशन किया था तो हमको -BLV करके आया था, हमको -BLV करके आया था। सो दिस इज बेस्ड ऑन द डेरिवेशन, the very first derivation of the chapter, not given in the textbook, only given in my notes. Refer to my FM channel, isn't it? ये तो इतना आसान है ना, तो ये तो आप नींद में भी बोल सकते हो, मुझे लगता है बहुत ही आसान है। देखते कौन आंसर।
This is so easy. Which option? RMS वैल्यू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा था? ओ भाई सारे जमीन पर है कुछ लोगों का. मेरे को लगता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में बोलते हैं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में बोलते हैं. ध्यान से देखो ना, 1 मिनट लगेगा ध्यान लगाने के लिए. कॉन्सेंट्रेट गाइस. या अभी सबने आंसर बराबर किया. मैं भी एग्जाम के हॉल में जब आप एग्जाम देंगे तो मैं वहां आके आपके सामने खड़े रह के बोले देखो क्या लिख रहे है कि नहीं, तो बराबर लिखेंगे. पहले सबने गलत आंसर दिया, फिर सबने अपना आंसर चेंज किया. देखो क्या मजा. ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन विच इज सो सिंपल. रिपीटेटिव है ये क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. डोंट मेक अ मिस्टेक. मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है पहले. यस तक्षिता करेक्ट, विनायक करेक्ट. ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू 0 होता है. एवरेज वैल्यू क्या रहता है? 0 होता है. So that's it from me today. I hope you have made a complete list of all the formulas. So we meet soon. Thank you for joining me today. Okay. Yeah.